Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. Welcome students. I, Muhammad Amanullah, is here before you for the entrance courses for like MBA, MBA-FM, MHRM, MTTM, MIRM and MSW. I am taking environmental awareness in Aligarh Coaching Center, and Aligarh Coaching Center is known for its MBA entrance in Aligarh. So we will discuss which type of environmental awareness we have in this MBA entrance as well as for MTTM, MIRM and MHRM. तो environmental awareness में हम आप लोगों को ये दिखाएंगे, ये बताएंगे कि environmental awareness में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने हैं, और जो सिलेबस है आपका MBA का, MIRM का, MHRM का, MBA FM का, वो क्या कहता है environmental awareness के बारे में. Basically environmental awareness covers with your topics like economy, means we have Indian economy in our hand. Then we have somehow polity related to some, we will discuss some topics related to technology in India. We will take up economy, politics, technology as well as international organizations. We will take up international relations as well as social sectors of India. If you look for environmental awareness syllabus, you will find that around 70 to 80% syllabus cover this with this economy, like Indian economy. After that, polity, technology, international organization, international relations of India with other countries, as well as the social causes, social sectors or social drawbacks, social factors in India. तो environmental awareness हमारी ये कुछ 5-6 broad topics को cover करता है. environmental awareness अगर हम देखें तो हमारे पास 100 नंबर का पेपर आता है MBA में, which is divided in maths as well as in environmental awareness, as well as for reasoning and as well as for English. Each subject covers 25 marks. 25 नंबर का हर एक सेट होता है आपका मैथ्स का, environmental awareness, reasoning as well as for English. So I'll take up your environmental awareness. I'll give you the lectures on environmental awareness, how questions will be asked, what is the pattern related to the questions. इकोनॉमी में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें देखेंगे, टेक्नोलॉजी में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, रिलेशंस में, एज वेल एज फॉर दी सोशल फैक्टर्स. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर हम देखें एनवायरमेंटल अवेयरनेस का सिलेबस, तो अराउंड 25 नंबर में से आप ये मान के चलो 12 से 15 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के आने, बिकॉज योर एनवायरमेंटल अवेयरनेस सिलेबस इज कवर्ड अराउंड 70 to 80% फॉर इकोनॉमी. और इकोनॉमी में हमें ज़्यादा डीप की नॉलेज नहीं लेनी है, हमें ऊपर के सारे वो टॉपिक्स कवर करने हैं जो एक लेमैन भी जानता है कि इकोनॉमिक्स मतलब सुने हैं उसने, लेकिन हमें उसी से आप लोगों को अवेयर कराना है कि कौन सी चीज़ क्या है. जैसे कि टैक्स एक ऐसा टॉपिक है, एवरीवन नोज अबाउट टैक्स, वी हैव टू पे टैक्स, बट व्हाट इज टैक्स, हाउ टैक्स इज टू बी पेड, व्हाट आर द डिफरेंट स्लैब्स, व्हाट इज जीएसटी, व्हाट इज स्टेट जीएसटी, व्हाट इज इंटर स्टेट जीएसटी, व्हाट इज सेंट्रल जीएसटी. These are the some topics for related to tax, as well as if you look for commercial banks, everyone knows that yes, PNB, Indian Bank, and we have ICICI, HDFC, SBI. These are all commercial banks. लेकिन how it works, what is the role of commercial bank? Same RBI, Reserve Bank of India, everyone knows about it. Yes, it is a central bank. हम उसके अंदर पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक है RBI, कब बना, कैसे बना, कौन से फॉर्मेट पर बना, किस मॉडल को हमने फॉलो किया, तब हमने आरबीआई को बनाया, कौन इसका गवर्नर है, कैसे गवर्नर अपॉइंट होता है, कितने डिप्टी गवर्नर हैं, क्या रोल है आरबीआई का हमारे इंडियन इकोनॉमी में, कमर्शियल बैंक में क्या रोल प्ले करता है, एज वेल एज हमारा जो है वो क्या नाम है उसका इंडियन इकोनॉमी में मनी सप्लाई की जहाँ पर बात हुई, मॉनेटरी पॉलिसी मैं समझ सकता हूँ कि जो नॉन इकोनॉमिक्स या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पता है, तो आई ब्रीफली डिस्कस अबाउट दी मॉनेटरी पॉलिसी.
वी विल डिस्कस फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है कंट्री की हमारी, उसमें से सवाल पूछे जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में से डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कैश रिजर्व रेशो, CRR, SLR, बैंक रेट, कॉल रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये क्या चीज़ें होती हैं। एज वेल एज अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिक्स में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमें देखना है। इंडियन इकोनॉमी कैसी है, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या क्या रोल है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया का कैसा है, हमें उसे देखना है। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत कॉमन और जनरल हैं, लेकिन हमें उन टॉपिक्स को बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ना है। जनरल टॉपिक्स को हमें डीपली पढ़ना है, स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को हमें नहीं पढ़ना है, जो बिल्कुल कोर इकोनॉमिक्स की हार्ट है उसको हमें नहीं पढ़ना है। सेम अगर हम पॉलिटी देखें, मींस पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, हमें यह नहीं पढ़ना है कि हाउ अ स्टेट पार्टी बिकम्स नेशनल पार्टी। नो, इट इज नॉट मैटर ऑफ कंसर्न इन MBA कि एक स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी कैसे बनेगी या नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी कैसे बनेगी इन द आइज ऑफ लॉ। लेकिन हमें पॉलिटिक्स के अंदर यह पढ़ना है कि हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बना, कैसे बना, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कुछ कॉमन राइट्स हैं जो आप लोगों के पूछे, जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू नॉलेज हो गया, राइट टू सीक रिड्रेसल हो गया, है ना। नेशनल फ्लैग के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। अपने कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ना है कि कितनी पॉपुलेशन है, कितने रीजन को वो कवर करती है, कौन कौन सी कंट्रीज से कौन कौन सी बाउंड्रीज टच होती हैं इंडिया की। तो ये सारी चीज़ें हमें पॉलिटी के अंदर थोड़ी बहुत पढ़नी है। बेसिकली एक ब्रीफ स्ट्रक्चर हमें अपने माइंड में पॉलिटिक्स से रिलेटेड बनाना है। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मेन कंसर्न इन टुडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। एवरीवन इज इनटू द टेक्नोलॉजी, हर कोई टेक्नोलॉजी के कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व है, either in terms of laptop, either in terms of mobile, either in terms of social networking, either in terms of you can say teaching, either in terms of you can say business. You are into the technology these days, or technology is daily upgrading as well as changing. You can observe directly. तो we will take up technology के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है, जैसे कि न्यू इन्वेंशंस इंडिया में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किस सेक्टर्स में रिमार्केबल हुए हैं पिछले कुछ सालों में, और कौन कौन से चीज़ें अभी लाइन अप हैं, पाइपलाइन में हैं, प्लस कौन कौन सी ऐसी कंपनीज को हमने इंडिया में जगह देने वाले हैं या दे दी है, जिसकी वजह से इंडियन सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो कैसे अपग्रेड होगी। तो वी विल टेक अप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एज अ मेजर टूल इन एनवायरमेंटल अवेयरनेस, बिकॉज इट विल बी आस्क्ड डेफिनेटली इन एग्जाम। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, you must have heard about the World Bank, you must have heard about the IMF, GATT, WTO, UNICEF, SAARC, SAFTA, NAFTA। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलाकर हमको पढ़नी है। जैसे कि देयर आर सम बाइलेटरल ट्रीटीज, दो कंट्रीज के बीच में क्या डील साइन हुई, क्या पैक्ट साइन हुआ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रोल प्ले करा उसके अंदर कि आपकी ट्रीटी साइन कराने में, किस कंट्री से आपका क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, ये दोनों टॉपिक्स उसको कवर करेंगे। बेसिकली हमें जो कंसर्न करना है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो करना है हेल्थ सेक्टर को लेकर, एजुकेशन सेक्टर को लेकर, इंडस्ट्री सेक्टर को लेकर। पॉलिटिकल सेक्टर को लेकर हमें उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना है। हमें इकोनॉमी, सोशल एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल बेस पर हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को जज करना है, देखना है कि कितनी चीज़ें कहाँ पे कैसे डेवलपमेंट हुआ है और कैसे कुछ चीज़ें डाउन हुई हैं, डाउनग्रेड हुई हैं और काम उस पर नहीं हुआ है। नाउ दी सोशल सेक्टर्स। सोशल सेक्टर्स अगर हम देखें तो सोशल सेक्टर्स के बारे में हम कैसे जानेंगे? we are having different states with different cultures, with different languages, with different colors, with different customs, beliefs, etc. तो social sectors हमें देखना है कि अगर हम India I think is the only country in the world where language varies city to city, where culture varies city to city। अगर हम देखें तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है अगर हम एक शहर से दूसरे शहर पहुंचते हैं, कल्चर चेंज हो जाते हैं अगर हम एक शहर से दूसरे शहर पहुंचते हैं।
तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से सोशल सेक्टर, सोशल फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे हैं हमारे, जिसमें इंडिया के अंदर जिसका बहुत बड़ा रोल है आपकी इकोनॉमी में एज वेल एज आपके इंडियन सिस्टम में पूरे, जिसको आप लोग डेली फेस करते हैं और लोग डेली फेस कर रहे हैं, जैसे कि एनजीओ की फॉर्म में काम होता है, डिफरेंट सोशल कॉजेस को डिफरेंट सोशल सेक्टर्स में काम होता है, उठाया जाता है, अपग्रेड करा जाता है। तो उन सारी चीज़ों को हमें इसके अंदर देखना है। ये तो एक बहुत ही ज़्यादा मैंने आपको जो टॉपिक्स बताए हैं वो टॉपिक्स जो हैं आपके वो बहुत ही ज़्यादा ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी हमको आपके फर्दर क्लासेस में कवर करेंगे। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया एनवायरमेंटल अवेयरनेस का कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर आपको MBA, FM, MHRM, MTTM, MIRM में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एनवायरमेंटल अवेयरनेस में ये ब्रॉड टॉपिक्स को कवर करना ही पड़ेगा। नाउ as I have talked about the social factors, political factors as well as the economic factors covered in environmental awareness syllabus, I will be taking unemployment as a first topic of concern. Why so? Because unemployment एक ऐसी चीज है, बेरोजगारी एक ऐसी चीज है which is there in social factors also, political factors also as well as for the इकोनॉमिक फैक्टर। बेसिकली ये जो अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक है ये है तो आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक, लेकिन कुछ चीज़ें सोशली ऐसी हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट से कवर है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सोशली इफेक्ट करता है डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों पर। और पॉलिटिकली अगर देखा जाए, आज का सिनेरियो अगर देखा जाए तो हर अपोजिशन पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी को यही कहते हुए घेर रही है कि बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। तो वी विल टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट इज बेरोजगारी। बेरोजगारी इज व्हाट? बेरोजगारी वो नहीं है कि जैसा सब लोग समझते हैं कि एक आदमी उसको काम नहीं मिल रहा वो बेरोजगार है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, अकॉर्डिंग टू द सेट रूल्स एंड set norms led by the government as well as the at that time planning commission of India कि what is the exact definition of unemployment and who is covered in unemployment। ऐसा नहीं है कि कोई अगर हाई स्कूल पास है या हाई स्कूल पास नहीं है और वो कह रहा है कि मुझे को नौकरी नहीं मिल रही, तो नो, ही इज नॉट अनएम्प्लॉयड, ही इज अनएजुकेटेड, दैट्स वाई ही इज अनएम्प्लॉयड और दैट्स वाई ही इज नॉट गेटिंग वर्क। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? इट इज अ सिचुएशन where workers are able and willing to work but can't find a job at a prevailing wage rate। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि एक आदमी जो कि एबल है, मतलब ही इज कैपेबल इनफ, ही इज ऑफ साउंड माइंड, दिमाग का सही है, ही इज वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखा है पूरा, और ही इज फिजिकली कैपेबल, हाथ पैर आंखें मुंह सब चीज सही है, ही इज एबल एंड विलिंग। एक ठीक ठाक आदमी, पढ़ा लिखा आदमी चाहता है काम करना लेकिन कांट फाइंड अ जॉब, उसको नौकरी नहीं मिल रही एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट। प्रिवेलिंग वेज रेट का मतलब यहां पर क्या हुआ? अगर हम देखें तो प्रिवेलिंग वेज रेट का मतलब यह हुआ कि ठीक है, अगर एक इंजीनियर एक नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग करके एक बच्चा निकला तो ही विल गेट अ जॉब ऑफ अराउंड 20-25,000 और 30,000 रुपीज इन अ मंथ। तो अगर वो तैयार है 25,000 रुपए की नौकरी करने के लिए और 25,000 रुपए एक फ्रेशर इंजीनियर को मिलते हैं मार्केट में, बट ही इज नॉट एबल और ही इज नॉट गेटिंग जॉब, तब वो कहलाएगा कि यस ही और शी इज अनएम्प्लॉयड। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी वो जो काम कर सकता है, पढ़ा लिखा है और जो पैसे मार्केट में मिलते हैं उस पर राजी है काम करने को, बट ही वोंट गेट अ जॉब, उसको जॉब नहीं मिल पाएगी या ही कैनॉट फाइंड अ जॉब, वो जॉब नहीं ढूंढ सकता और जॉब नहीं मिल सकती उसे हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। कहने का ये मतलब है कि अभी मैंने बताया आपको कि प्लानिंग कमीशन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ एस्टिमेट्स ऐसे सेट करे जो कि अनएम्प्लॉयड कहलाया जाए, तो उसको हम देखेंगे। प्लस अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी इज डायरेक्टली रिलेटेड, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट गिव्स बर्थ टू पॉवर्टी। किसको? गरीबी को क्या चीज जन्म देती है? बेरोजगारी। बेरोजगारी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इन टर्म्स ऑफ नॉट हैविंग अ गुड बिजनेस, क्योंकि बिजनेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉट
employment but a part of, you can say a business is a self employed. खुद जो आदमी अपना रोजगार अपने लिए पैदा करे, he is called self employed. तो at that time a committee was set up by the planning commission in the year 1973. ये आपको कमेटी याद रखनी है कि बी भगवती कमेटी was set up in 1973 by Planning Commission of India, which is now replaced by Niti Aayog in the year 2014 by the Prime Minister of India, that is Mr. Narendra Modi. उन्होंने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया एंड इट इज टोटली रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, एंड द फुल फॉर्म ऑफ नीति इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. प्लानिंग कमीशन को आपने नाम चेंज करा, आप कमेटी चेंज करिए आपने, अब वो कहलाती नीति आयोग. लेकिन 2014 से पहले इट वाज प्लानिंग कमीशन, और बी भगवती कमेटी वाज सेट अप टू गिव द एस्टिमेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. एस्टिमेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मींस वो चीजें आपको निकाल कर बतानी है कि जिसके बिहाफ पर, जिसके बेस पर कहा जाए कि फलाना बंदा या ये बंदा अनएम्प्लॉयड है. जैसे कि पहली चीज यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस विच इज कॉल्ड यूएसपी. यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, सॉरी इट इज यूपीएस, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस विच इज एन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स विच वी आर विटनेसिंग दीज डेज. जो हम अब विटनेस कर रहे हैं वो क्या है, हमारा यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस है. मतलब कि इट्स एन ओपन एम्प्लॉयमेंट. इट गिव्स दिस कॉन्सेप्ट says about open unemployment where a person is able and willing to work at a prevailing wage rate but can't find a job, or we can say not getting a job. Second is current weekly status, that is CWS employment. CWS मतलब क्या हुआ, current weekly status मतलब a person is not even having एन आर, 1 घंटे का भी 2 घंटे का भी उसे काम वीक में नहीं मिल रहा, तो ही और शी इज अंडर CWS अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ करंट डेली स्टेटस CDS, डिडंट फाइंड वर्क ऑन अ डे और सम डेज ड्यूरिंग द सर्वे वीक. ना ही तो 1 दिन ना ही 2 दिन, 1 दिन भी अगर किसी आदमी को काम नहीं मिल पा रहा तो इट कम्स अंडर द करंट डेली स्टेटस. क्या कहलाएगा वो, करंट डेली स्टेटस. तो 3 पैरामीटर्स वी हैव. तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपकी गरीबी है. तो कहने का मतलब यह है कि पॉवर्टी और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट. अब अगर हम बात करें, इफ वी टॉक्ड अबाउट पॉवर्टी मींस गरीबी, वेयर अ पर्सन इज नॉट एबल टू कलेक्ट, टू गेट फूड, शेल्टर, क्लोथिंग. इफ ही और शी इज कांट अफोर्ड टू हैव इवन फूड, शेल्टर एज वेल एज क्लोथिंग, ना तो कपड़े वो अरेंज कर पा रहा है, ना खाना, ना छत, तो वो गरीबी, बहुत गरीब है. मतलब ही और शी इज बिलो पॉवर्टी लाइन विच इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी. क्या कहलाती है वो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाती है. वेयर अ पर्सन और अ फैमिली कांट अफोर्ड टू हैव बेसिक नेसेसिटीज, जहां पर आपको बेसिक नेसेसिटीज ना मिल पाए. बेसिक नेसेसिटी कवर्स योर फूड, योर शेल्टर, योर क्लोथिंग, कपड़े खाना. सेकेंड टाइप ऑफ पॉवर्टी इज रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मतलब कि अगर आप देखें, एक आदमी खाना, कपड़े और छत किसी के पास है तो आज की डेट में वो गरीब कहलाता है. क्यों कहलाता है, अगर उसके पास है भी, वो खाना टाइम पर खा रहा है, सही खा रहा है, कपड़े हैं पहनने को, बिना कपड़ों का नहीं है, घर है, भले छोटा घर है, छत है उसके पास, तो वो गरीब कहलाता है. क्यों, बिकॉज ही और शी इज नॉट मेंटेनिंग और फुलफिलिंग और लिविंग स्टैंडर्ड. तो when a person is not able to live a life like a standard of living, मतलब if a society needs a car, कि a man should have a car, एक आदमी के पास कार होनी चाहिए, बट वो कार लेना चाहता है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, ले नहीं पा रहा,
तो he or she is under the relative property. So we are having majorly two types of poverty, absolute poverty and relative property, which you needs to remember always. Now we will take up some topics related to types of unemployment, कि हमारे पास कितने तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास मौजूद हैं. तो वी विल टेक अप एंड वी विल सी दैट first type of unemployment is types of unemployment. The first one we will see is cyclical unemployment. Cyclical unemployment मतलब results because of depression in economy. Because of depression in economy. What do we mean by cyclical unemployment? And a keyword over here is depression. If you see the graph of economy of the world as well as for any country, you will find that yes, there was a downfall in economy, and after downfall, एक बार downfall था, फिर आपकी इकोनॉमी उठी उठते उठते फिर अपने बूम पर आई, और जब वो आके नीचे गिरना शुरू हुई तो दिस इज बूम, दिस इज टॉप, दैट दिस कंट्रीज इकोनॉमी इज इन टॉप, इट इज अ सिचुएशन हेयर. जैसे ही वो इकोनॉमी गिरी और अपने लास्ट में आई, इकोनॉमी इज इन डिप्रेशन. तो ये ग्राफ, ये चार्ट चलता है एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड वी आर विटनेसिंग इट फ्रॉम द लास्ट 200 to 300 ईयर्स की. एक डिप्रेशन हर बार इकोनॉमी का वर्ल्ड लेवल पर या कंट्री लेवल पर आता ही आता है. तो जब डिप्रेशन आता है तो इकोनॉमी डिप्रेस हो जाती है, इकोनॉमी के अंदर काम रुक जाता है, इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट रुक जाता है, इकोनॉमी के अंदर बिजनेस रुक जाता है. जब बिजनेस रुकता है मनी ब्लॉक होता है. जब मनी ब्लॉक होता है बिजनेस के अंदर तो लोगों को काम करने को नहीं दिया जाता, लोगों को काम रोक लिया जाता है, लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया जाता है, लोगों को निकाल दिया जाता है. तो साइक्लिकल, व्हाई इट इज कॉल्ड साइक्लिकल? बिकॉज इट्स अ साइकिल. ये साइकिल है कि अगर इकोनॉमी बूम पर जाएगी तो गिरेगी भी, फिर उठेगी, फिर गिरेगी. तो इट्स अ साइकिल, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो जब कभी भी डिप्रेशन आएगा कहीं पर भी तो वो अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म देगा. तो द फर्स्ट वन इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट विच यू नीड्स टू रिमेंबर. सेकेंड वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया? वर्कर्स आर जॉबलेस व्हेन देयर इज नो वर्क फॉर अ specific period of time, like harvesting or next sowing. One of the prime and one of the best example, seasonal unemployment. सीजन हुआ, लोगों को रोजगार मिला, सीजन गया, लोगों का रोजगार खत्म. मतलब आम, बेस्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को एग्जाम्पल. आम का सीजन मार्च के महीने में स्टार्ट हुआ, लोग आमों के बागों में लगे, बागों में लगने के बाद जैसे ही जुलाई अगस्त तक आते आते सारे आम बिक गए, आमों का सीजन खत्म, लोग अनएम्प्लॉयड फिर 6 महीने के लिए. सेम खेती जब होती है तो जब कट गया फसल, लोगों को बुलाया, भैया काटो जाओ, और फिर अगले जब सो करेंगे, बीज को डालेंगे, खुदाई होगी खेत की, बीज डाले जाएंगे, खेत लगाए जाएंगे, तो लोगों को बुलाया जाएगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा. जब ये प्रोसेस खत्म, लोग अनएम्प्लॉयड. सेम इंडिया के अंदर सर्दियां आई, सर्दियों के कपड़े बिकना शुरू हुए, सर्दियों के कपड़े बने, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला. सर्दी खत्म, सर्दी बनाने वाले, कपड़े बनाने वाले लोगों की जॉब खत्म. गर्मी का भी यही सीन है. तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सीजन के हिसाब से लोगों को रोजगार मिलना, और जब सीजन खत्म हो जाना, लोगों का रोजगार खत्म हो जाना. थर्ड वन इज अंडर अनएम्प्लॉयमेंट. where an engineer is doing a clerk job.
अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब वेर यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। ओवर क्वालिफाइड का मतलब क्या हो गया, हो तुम इंजीनियर काम कर रहे हो क्लर्क का, हो तुम डॉक्टर काम कर रहे हो नर्स का, हो तुम क्या नाम है उसका पीएचडी करे हुए बंदे और तुम पढ़ा रहे हो नर्सरी के स्कूल में, तो दिस इज अंडर इन एम्प्लॉयमेंट। और ये वो सिचुएशन है जो आज की डेट में हम विटनेस कर रहे हैं। इंडिया इज करेंटली विटनेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एज वेल एज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगर आप देखें तो सरकारी नौकरियां अगर जैसे कि कहीं क्लर्क की आई तो पीएचडी वाला भी अप्लाई कर रहा है, इंजीनियर भी अप्लाई कर रहा है, और दूसरे जो फर्दर कोर्सेज करे हुए हैं जो कि क्लर्क से मतलब नहीं है किसी का, तो दे आर ऑल्सो अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड इट इवॉल्व्स अंडर द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जब होगा तो ये सारी चीजों को जन्म देगा या इन सारी चीजों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट याद रखिएगा, वेयर अ पर्सन इज डूइंग अ जॉब लेस देन हिज और हर कैपेसिटी, हिज और हर कैपेबिलिटी। जब वो अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज से कम लेवल का काम कर रहा है तो ही और शी इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। हाँ, in between I have to give you my number also. This is my number 8791648465. As this is an online class, so you can connect me on WhatsApp. You can connect me on call 8791648465. You just need to write down it. आप इसको सेव कर लें मेरा नंबर। Now, the next is educated unemployment. Educated unemployment. It is found majorly in urban areas. As the name suggests also that educated unemployment, where a person is an educated person, मतलब वो MBA करे हुआ है, वो PhD करे हुआ है, वो BTech करे हुआ है, वो MTech करे हुआ है, वो फार्माकोलॉजी का अच्छा कोर्स करे हुआ है, बट वो शहरों में नौकरी उनके लिए नहीं है और वो शहर में ही रह रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई कि गांव का आदमी गांव में रह रहा है, उसको वहां काम नहीं मिल रहा, खेतों पे काम नहीं मिल रहा। एक हो गया बंदा जो शहर में रहता है, वेल एजुकेटेड मैन है, वेल क्वालिफाइड है, बट ही इज नॉट गेटिंग जॉब, तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट इज फाउंड मोस्टली इन अर्बन एरियाज, वेयर in urban areas you need to write down where a person is capable, where a person is educated, when a person is able and willing to work and can't find a job in an urban areas and he resides also in urban area, वो रहता भी वहीं है, तो this is a situation of educated unemployment. Next one is the frictional unemployment. Frictional unemployment, changing of job, changing of job. It is a temporary unemployment. We can say it is a temporary unemployment. कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहीं जॉब करूं, मेरी 50,000 रुपये सैलरी हो, मैं चाहूं कि यस अब मेरे पास वो नॉलेज है, वो स्किल्स आ गई हैं, वो एक्सपीरियंस आ गया है, एक्सपोजर आ गया है, अब आई नीड टू चेंज माई जॉब, मुझे अपनी जॉब चेंज करने की ज़रूरत है, या आई हैव टू चेंज माई जॉब, मुझे अपनी जॉब चेंज करनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अगर सपोज करिए कि इफ़ आई एम इन दिल्ली में मुझे 50,000 मिल रहे हैं, तो अगर मैं देखूँगा कि यार बेंगलोर में या मुंबई में या नोएडा में मुझे जो है वो 60, 70, 80,000 तक सैलरी मिल सकती है, तो मैं इस जॉब को स्विच करूँगा, चेंज करूँगा। तो जब एक जगह से दूसरी जगह जॉब स्विच करने का, चेंज करने के बीच में जो आदमी, जो लोग, जो लेबर, जो एम्प्लॉयज़, जो वर्कर्स जॉबलेस होते हैं, वो कहलाते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वो किस में आता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है, जब इंसान अपनी मर्जी से अपनी जॉब को चेंज करता है तो फॉर दी बेटर अपॉर्चुनिटी। किसकी अपॉर्चुनिटी के लिए? बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। तो वो क्या कहलाता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। नाउ यहां पर आकर आपके टाइप्स, तो हमने 5-6 टाइप्स पढ़ लिए। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लिया हमने, फ्रिक्शनल पढ़ लिया, सीजनल पढ़ लिया, साइक्लिकल पढ़ लिया,
हमने कुछ टाइप्स पढ़ लिए, हमने ये एस्टिमेट्स देख लिए कि CDS क्या है, CWS क्या है, आपका UPS क्या है, इस सबको आपको याद करना है। पॉवर्टी हमने देख ली कि पॉवर्टी किसे कहते हैं, पॉवर्टी कितने तरीके की होती, 2 तरीके की पॉवर्टी होती है। तो यहाँ पर आकर आपका एक ब्रीफ ओवरव्यू, एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैसे आएगी, कैसे पूछी जाएगी, क्या क्या टॉपिक्स कवर हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर। और एक टॉपिक आज हमने ले लिया अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और इसको हमने कवर कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट यू विल गेट फ्रॉम इट मैक्सिमम। और जो भी इसमें आपको इश्यूज हों, प्रॉब्लम हो, सवालात हों आपके, तो आप मुझसे व्हाट्सएप, मैं नंबर दे दिया है आपको, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी द प्रॉब्लम्स। और जिस तरीके से अगर आप लोगों को लगे तो जो भी मेरी वीडियोस देखें तो एटलीस्ट मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि हमारी कोचिंग हर ग्रुप, हर बैच का, MBA के एंट्रेंस का कोई भी बैच हो, उसके लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाती है फॉर द इंफॉर्मेशन एज वेल एज फॉर द नोट्स जो हम लोग उसमें दे सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन जो दे सकते हैं आप लोग। तो आप लोग ज़रूर जो भी मेरे वीडियोस देखें, ज़रूर मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये थोड़ा सा ओवरव्यू और ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।